Okay, today we will retire. We will revise retirement full length question. A sample question: A, B, C were partners in a firm. A, B, C were partners in a firm. Balance sheet on 31st March 2019. Balance sheet on 31st March 2019. Liabilities. Bills payable 20,000 20. Bills payable 20,000 20. Creditors 40,000. 40. General reserve 30,000 30. Workman compensation reserve 6,000. Workman compensation reserve 6,000. Capitals A, B, C 60,000, 40,000 and 32,000. 60,000, 40,000 and 32,000. Total capital 1,32,000 and total of liability side 2,28,000. Balance sheet total 2,28,000. Now we come to asset side. Bank 20,000. Bank 20,000 20. Furniture 28,000. Stock 20,000 20. Debtors 45,000. Debtors 45,000 less provision. Less provision for doubtful debts, it is 5,000. Land and building 1,20,000. Land and building 1,20,000. Next, additional information: B retired on 1st April 2019. B retired on 1st April 2019. Full stop. A and C decided to share profits in the ratio 2:1. A and C, क्योंकि B रिटायर हो गया, A and C decided to share future profits in the ratio 2:1. Other terms and conditions are number one, goodwill of the firm was valued at 30,000 30. Next, bad debts written off 4,000. 4,000. 4,000
provision for doubtful debt, provision for doubtful debt was to be maintained at 10%. Was to be maintained at 10% on debtors. Land and building to be increased. Land and building to be increased to 1,32,000. Land and building increased to 1,32,000. Furniture was sold for 20,000. Furniture was sold for 30,000 and furniture was sold for 20,000 and payment was received by check. Liability towards workman compensation. Liability towards workman compensation was estimated at 1,500. Liability towards workman compensation was estimated at 1,500. Last, B was to be paid 20,000 through a check. B was to be paid 20,000 through a check and balance was transferred to his loan account. बाकी पैसे ट्रांसफर किए उसके लोन अकाउंट में, बस ये शो करना है. You have to prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet and bank account. No balance sheet. हाँ, फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर 20,000. ठीक है. You have to prepare revaluation account, partners capital account and bank account. Yes. First of all, calculate gaining ratio. First of all, calculate gaining ratio. New minus old. New ratio is given. Old ratio is given. New ratio is given. New ratio 2:1 is given. And after that, treatment of goodwill. नहीं दिया तो 1:1 होगा. ठीक हो गया. When old ratio of the partners is not given, it is assumed to be equal. There are 3 partners, so it will be assumed equal. So we will start by calculation of gaining ratio and treatment of goodwill. Gaining ratio of A, old 1/3, new 2/3. A, B, C 1:1:1. It is the old one. हाँ तो कोई बात नहीं.
न्यू रेशियो 2/3 माइनस इट इज गेनिंग रेशियो ऑफ 1/3. only A gains, only A gains. ठीक है. Now total goodwill of firm given है how much? 40,000. 30,000. C's share कौन रिटायर हो रहा है? बी. B retires, so B's share of goodwill is 10,000. जो कौन देता है? गेनिंग पार्टनर्स. गेनिंग पार्टनर्स गेनिंग पार्टनर के अकाउंट में इन्हें डेबिट करते हैं और जो जा रहा होता है उसके अकाउंट में क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं. एक ही आदमी गेन कर रहा है. कौन? ए. एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू B's कैपिटल अकाउंट. एनी प्रॉब्लम? ये आपका हरिंदर सिंह 2 नंबर का काम हो गया. अरे भाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ था, नहीं तो निकालना पड़ता है. तो जो पार्टनर जाता है उसका शेयर हटा देते हैं, बाकी जो बचा होता है वो न्यू शेयर हो जाता है. वैसे ही इन्होंने वैसे ही बता दिया नया पार्ट जो न्यू शेयर ऑफ द फर्म विल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ए एंड सी विल बी दिस. ओल्ड तो है ही नहीं, तो इक्वल हो गया. अगर ये ए और बी दोनों जो गेन कर रहे होते तो 10,000 रुपए दोनों जने मिलके देते, है ना. हाँ, मान लो 3:2 होता तो 6 और 4 हो जाता. 6,000 वो देता, 4,000 वो देता. फिर ये ध्यान रखो, ये जो है दिस वन यू हैव टू आल्सो शो इन द कैपिटल अकाउंट. डेबिट साइड में, डेबिट साइड में उसके अकाउंट से इतने पैसे क्या करेंगे? कम करेंगे. और सी के अकाउंट में, सॉरी बी के अकाउंट में जो जा रहा है उतने पैसे क्रेडिट करेंगे. ठीक हो गया. बहुत अच्छा चल रहा है आपका. आगे बढ़िए. इसकी फोटो खींच लेते हैं. अब लिखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट. आफ्टर दिस वी विल प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट. लॉस वर्किंग नहीं है 28,000 का नहीं करना. तो जरा ध्यान से करो. अब जो है लेट अस कम टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट में कह रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 की थी. 12,000 नाउ इट इज इंक्रीज टू 132. तो प्रॉफिट हो गया बाय लैंड.
Land and building was increased from 1,20,000 to 1,32,000. There is an increase of 12,000 to be recorded on the credit side of revaluation account, क्योंकि फायदा हो रहा है 12,000. सिंपल है. फर्नीचर 8,000 का फर्नीचर में क्या हो गया? लॉस. इसके बाद बैड डेब्ट्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना? 6,000. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 6,000. उसमें से 1,500 लाइबिलिटी हुई, हमें नुकसान तो कोई नहीं हुआ. बचेंगे कितने? 4,500. वो हम बांट देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड. बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ 4,000. प्रोविजन हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, कितना? 5,000. तो कोई लॉस नहीं हुआ. 1,000 रुपए अभी बच रहे उधर. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वाज टू मेंटेन्ड 10% ऑन डेटर्स. 45 है? 500 कहाँ से हो गया? सर 45 और वो थे. मतलब हमने जो 10% निकाला 45,000 के रिटर्न थे. 45 हो गया सर. 5,000 के हमने प्रोविजन बनाया था. 5,000 का प्रोविजन ऑलरेडी वी हैव. उसमें से 4,000 राइट ऑफ. बैड डेब्ट्स 4,000 वर रिटर्न ऑफ. 1,000 बचे. 1,000 बचे. 5,000 माइनस 4,000, 1,000 बचे. उस पे 10% आपका प्रोविजन क्रिएट करना है. डेटर कितने हुए? 4100 के हुए डेटर्स. 41. उस पे 10%. 4,100. लेकिन ये 1,000 कहाँ गया? 1,000 रुपये. ठीक हो गया. 4,000 हमने उसमें से राइट ऑफ कर दिए जो प्रोविजन क्रिएट किया था. 1,000 बचा है प्रोविजन. और डेटर्स हमारे टोटल है 45. उसमें से 1,000 का प्रोविजन ऑलरेडी क्रिएटेड है. बचे 41,000. 41,000 में अब हम न्यू प्रोविजन क्रिएट करें. कितना? 10%. 4,100. हाँ 1,000 रुपए का प्रोविजन है ना हमारे पास. टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट. देखते हैं कि कितना हमारे को जो है एक्चुअल लॉस है. इसी में नीचे वो बन जाएगा. 11,100. प्रॉफिट होगा 300. वो और ये मिला के आपके 3 नंबर हो गए. चाहे 1.5 समझ लो, चाहे 1 2 1 समझ लो, ऑलमोस्ट इतने हो गए.
इसी में बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। अब देखो एडमिशन रिटायरमेंट देखो बेटा फर्क कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है, इधर भी वही आता है बाय कैपिटल दे रखी है तीनों की, लिख दो 60 40 32। क्वेश्चन लिखने में चाहे बेशक कितना ही बड़ा लगे आपको कुछ भी, बहुत सारी चीजें एडमिशन और रिटायरमेंट में सिमिलर है बेटा। तुम्हें लग रहा होगा एडमिशन के क्वेश्चन दे रहे हैं, कोई खास वो नहीं। बैलेंस उतार लिया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ था, ये सामने आपके बाय, उसमें न्यू पार्टनर को हम कुछ नहीं देते, इसमें जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको सब कुछ देते हैं, बिकॉज he was also there in the previous years, जो भी आपने बैलेंस शीट बनाई थी उसमें whatever जो भी था उसमें उसका भी कंट्रीब्यूशन था इन ऑल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स एंड ऑल, तो हम उसे भी उसका शेयर देंगे। तो रिवैल्यूएशन में भी उसको प्रॉफिट दे रहे हैं, अगर ये एडमिशन होता तो नए पार्टनर को नहीं देते, तो लेते हैं, ठीक है नहीं। और किसने दिया इसे गुडविल, ए ने, यहां पर लिखेंगे बाय एज बी में कितना। और बेटा रिटायरमेंट की खासियत जब आप यहां पर ये लिख दे कि रिटायरिंग पार्टनर को किसने दिया, तो उसी वक्त उसके अकाउंट में इधर भी लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए यहां पर टू इतना सिंपल सा लॉजिकल वो है। यहां देखिए आपने लिखा कि बी को किसने दिया, ए ने, तो यहां पर लिखा कि बी को किससे मिला है इसे, वही बात उधर भी लिखना, इधर एक ही साथ लिखिए सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन, एंड भूलो भी ना बाद में, कई बार छूट जाता है फिर इधर। और क्या था, ये गुडविल है बेटा। फिर आपको याद होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 4500 बचे, वो तीनों पार्टनर में बटने चाहिए बराबर बराबर 1500, ये लीजिए। और कुछ ठीक हो गया, करो टोटल 70,700 एक 70 61,700 500 300 800 होता है, 800 हो गया, एक 61,800 40 50 क्या हुआ 51,800 33,800 करंट अकाउंट वाली इसमें आती है अगर हो गया 61,800 51,800 33,800। अब याद करिए, देखिए इसमें क्वेश्चन में लिखा है 20,000 रुपए आपने बी को दिए कैश, ठीक है नहीं, 20,000 रुपए उसे कैश देने बी को, तो बी के लिखिए टू बैंक, क्या लिखिए बी को 20,000 रुपए कैश दे दो, बाकी कितने बचे 31,800। अरसलान ये लोन हो गया टू बीज लोन 31, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने उसे 20,000 दे, नहीं तो पूरा 51,800 उसका लोन हो जाता अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में, और अगर दिया ही वॉज पेड इन फुल तो यहां लिख देते टू बैंक 51,800, ठीक हो गया नहीं, बाकी दोनों के बैलेंस आ जाएंगे। टू बैलेंस कैरिड डाउन, इसका आ गया 51,800
आंसर है ये। और इसका आ गया 33,800। इसमें तो नहीं का क्वेश्चन ना, हम बना लेते हैं, कोई बात नहीं, हम बना के देख लेंगे। एक बनेगा इसमें भी बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट जो है आप वैसे भी बना सकते हैं, मैंने जैसे बताया था आपको, वहां नीचे लिखिए बैंक बैलेंस, जो पहले से दिया है प्लस जो जो आया और जो आपने पे किया, वो भी अभी दिखा देते हैं, पहले ही उतार लो। यहां तक समझ में आ गया? दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, एवरेज क्वेश्चन है, बट यू सी इट इज फ्रॉम द बोर्ड, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि नाउ आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ बैंक बैलेंस, दिस वाज द ओपनिंग बैलेंस, दिस वाज cash received from sale of furniture, this is amount paid to the retiring partner 20,000 by check, फिर 20,000 बचा, ये आ गया 20,000। फर्नीचर बताइए, नहीं वो स्टॉक 20, कितना था? 3,100 का मतलब पूरे बनाने का 4100 का, पूरा बनाना था 4100 का, इसमें था 1000 का, मतलब पहले से 4100 रुपए का और बनाया। फाइनल डेटर्स कितने हुए? लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 1 लाख सर 30,069 लैंड एंड बिल्डिंग 1,32,000। इधर क्या क्या था? बिल पेबल 20,000, creditors 40,000, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, दैट इज ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, खत्म हो गया। कैपिटल 60,40,100, 36,900 कैपिटल कितनी है देखो, 60,40,30, शट अप। सर जनरल रिजर्व में बांटना होगा सर, जनरल रिजर्व में बांटेंगे सर, जर्नलिज्म का था उसमें। सर था 30,000 इधर देखो, कैपिटल ऑफ ए एंड सी कितनी कितनी आई 51,800 है? जो आई है ना पार्टनरशिप में 51,800 और 33,800, और वो लोन 31,800 सर, वो डेटर में बैलेंस आएगा सर 69,000 36,000 सर, डेटर सर 36,900 टोटल करो पहले सर, फिर देखेंगे टोटल दिस साइड। अब देखना कितना रहा डेटर, सर 36,900 अरे यहाँ देखो ना, 20 50 152 152 आगे 152 में से 170 152 सर एक नंबर 172, so as such the question is incomplete about balance sheet. It is not asked, we will not fail, but जो जो आइटम हमने लिखे वो सही है, ओके। The items which we have written are correct, हो सकता है और भी कुछ items हो which are missing, therefore
the सर थोड़ा इंग्लिश पढ़िएगा so this is all for today's. You can practice more questions and prepare for your exam. Thank you. God bless all of you.